Hello, assalamu alaikum and good evening. Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India. News out of Lucknow is that South Africa have decimated Australia in their match. It was an outstanding performance by South Africa and a lot to think for Australia. With that, with me in the pavilion, I'm joined by four captains, four outstanding cricketing minds, four outstanding gentlemen. I've got the young, dynamic, throwing pearls of wisdom, Shoaib Malik. Shoaib, welcome back. Good evening and Assalamu alaikum everyone. With that, I've got Mr. Dependable, one of the most successful test captains of Pakistani test cricket history, Misbah ul Haq. Misbah, welcome back. Assalamu alaikum. One of the finest wicket keepers of the game and the man of crisis, the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, welcome. Assalamu alaikum everyone. Salam. And the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, Wasim Akram. Wasim, welcome back. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. राइट दोस्तों, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो नजर डालते हैं इस मैच समरी के ऊपर. ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है. सूरत हाल इस तरह है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी की दावत दी. साउथ अफ्रीका ने 311 रन बनाए. अगेन अ फैंटास्टिक इनिंग्स देयर बाय डिकॉक एंड मार्करम आल्सो जॉइनिंग द पार्टी. Maxwell, Stark, Hazelwood amongst the wickets. Maxwell looked the most successful bowlers for the Australians. In response, Australia were dismissed and sent packing by South Africa. Only a few innings there that can be mentioned, but look at those bowling figures for South Africa. Rabada, Maharaj, Shamsi, just outstanding. 134 रन से साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीता है, जिससे उनके नेट रन रेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. और ये देखने के लिए कि नेट रन रेट की सूरत हाल क्या है, आइए नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे. राइट दोस्तों, ये रहा पॉइंट टेबल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर. साउथ अफ्रीका goes straight on top, but look at that net run rate because of this game. It's 2.36. That's a big climb in the order. New Zealand now in the second place. India at the third place. Pakistan have slided down to the fourth place. Australia going all the way down to the ninth place there. England still waiting for another opportunity to make their way on top of the table. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी. हर टीम ने हर टीम से मैच खेलना है. So there's a lot more to happen in this World Cup. This is just the beginning, but the beginning is giving a lot of hints, and that's your points table. Right, Wasim, let me bring this to you. आपके ससुराल वालों को क्या हुआ वसीम? ये किस किस्म की परफॉर्मेंस थी? I mean, you know, कहते हैं ना proper belting, proper belting, no hammering. ऑस्ट्रेलियंस, I mean, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड था उस पे स्पिनर की कमी है, और वो इस मैच में भी पता लगी. Zampa went for 70, he's only got 1 wicket, he's their main bowler, and a part-time bowler bowled better than him. Maxwell 34 for 1 in his 10 overs. And पिच शुरू में, I mean, तारीफ़ करनी पड़ेगी डिकॉक की. उसने मोमेंटम उनका बनाया. उनकी पहली विकेट गिरी है 108 रन पे साउथ अफ्रीका की. हालांकि पहले 10 ओवरों में सिर्फ उनका 53 स्कोर था 34 डॉट बॉलों के साथ. एंड वंस Quinton de Kock started playing his shots, man, he looked totally different player. He looked class apart from the other players in today's game. I mean, that guy is a special player. If you see his innings, जी आज वसीम प्री मैच में भी आपने डिकॉक की बात की और आपने कहा you were very disappointed कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए. बिल्कुल. Yet again शॉटें देखिए उनकी सीधे बल्ले से. ये जो उसने एक शॉट मारी है, जो उसने 94 पे एक शॉट मारी है पैट कमिंग्स को, that was for me something out of स्पीड बहुत तेज है उनकी. हैंड स्पीड बहुत तेज है, और शॉर्ट बॉल पे तो वो ऐसे मारना शुरू करते हैं. मुझे ये नहीं समझ आई कि शॉर्ट बॉल पे कितने वो अच्छा खेलते हैं उसको. और फिर भी ऑस्ट्रेलियंस कॉन्स्टेंटली दे वर बॉलिंग लाइक टुवर्ड्स आइदर टुवर्ड्स हिज पैड्स और टुवर्ड्स हिज रिब केज. वहाँ से तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं. लेकिन नो डाउट उनको कहीं पे भी बॉल आए वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और उनके शॉट्स हर जगह पे लग रहे हैं. लास्ट मैच में भी उन्होंने 100 बनाया. तो वो एक ऐसे बैटर हैं जब आपके पहले 3 में से एक 100 बनाता है, यू आर ऑलवेज इन द गेम. यू आर ऑलवेज इन द गेम. मोइन, ऑस्ट्रेलियन कैचिंग को आज क्या हुआ? फील्डिंग जो थी वो उस मयार की नहीं थी जिस मयार की ऑस्ट्रेलिया की होती है. आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि नजर लग गई. हमारे यही होता है, नजर लगी. बट एनीवे,
میرا خیال ہے جو ٹاس تھا, ٹاس سے ہی مجھے تو ایسا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر ہے, پریشر میں, پہلا میچ ضرور ہارے تھے تو بہت ہی انڈیسائیسو تھے کہ کس چیز کے پریشر میں تھے موئن؟ پریشر میچ جیتے ان کو ٹاس جیت کے خود وہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے بالنگ کریں گے. پچھلے میچ کے ٹاس کا ان کو پریشر تھا اگینسٹ انڈیا والا, جس میں ان کو وہاں پہ ٹاس کا پریشر پتہ لگ جاتا ہے. بات یہ کہ یہ پچ ساؤتھ افریقہ نے بیٹنگ کی پہلے اور 311 رن بنائے. آئی تھنک کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی دیکھی ہے آسٹریلین کیمپ کے اندر, ایسی پچز کے اوپر یہ خود بیٹنگ کرتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں وہ نیگیٹو سائڈ تھی جو پچھلے میچ سے ان کے ایک انڈر پریشر ہوئے نا ہارنے کے بعد کہ یار اب کس طرح کی پچز ہوں گی, تو میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک ٹارگٹ رکھیں گے, بٹ وہ بالکل اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتے. ٹاس پہ کمن سے انہوں نے پوچھا بھی تھا, انہوں نے کہا مجھ سے کچھ دیر بعد پوچھنا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ویو گاٹ دی ڈراپ کیچز ہیئر, یہ ذرا نظر ڈالیں آپ موئن, آپ بتائیں, آپ تو یو جی بالکل 6 کیچز, یہ رہا پہلا والا کیچ جو ڈراپ ہوا. مجھے تو سمپل جیسے میں بول رہا ہوں کہ انڈر پریشر, یہ تو خیر بہت دور تھی, کیچ نہیں تھا, دور تھی, ایفرٹ ضرور کیے بٹ مشکل کیچ تھا تھوڑا سا. یہ والا دیکھ رہا ہوں, یہ تو ایز اے کیپر آپ بتا سکتے ہیں کنونشنل کیچ تھا, یہ تھا تھک ضرور تھا. گیند تھوڑا سا میرا خیال ہے اونچا آیا جس کی وجہ سے وہ مس کر گئے اس کو. اب یہ کیچ دیکھ لیں آپ, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیچ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ دونوں سے ہی مس ہو گیا اور اس سے بال جج نہیں ہو سکی, باؤنڈری لائک بالکل ساتھ تھی. اچھے ٹائم پہ ریلیز کر دی, ریلیز تو کیا تھا لیکن ریلیز بہت دور کیا. آپ دیکھیں نا وہ خود مومنٹم میں تھا, آگے آ رہا تھا, اس وجہ سے اس کو ٹائم نہیں ملا واپس دوبارہ اس کو کم بیک کرنے کا. یہ مارکرم کا 1 رن پہ کیچ, 1 رن تھا یہاں پہ, اور یہ وہ ٹائم تھا یہاں سے آسٹریلیا پکڑ سکتی تھی ساؤتھ افریقہ اور ریسٹرکٹ کر سکتی تھی چھوٹے ٹوٹل پہ. آلدو کہ انہوں نے کم بیک بہت اچھا کیا تھا سننگ کے اندر, آخری 15 اوور میں بہت کم رن دیے, ادروائز سے گرا بالکل. یہ بھی اور یہ بھی بیڈ لک کہوں گا, کیچ پکڑ لیا تھا جب وہ گرا ہے, اس کی ایلبوز لگی ہے زمین پہ, اس امپیکٹ سے چھوٹا ہے کیچ. اور یہ بہت ہی ایزی ڈالی تھا بالکل. اسٹوئنس میرا خیال ہے یہ کیچ چھوڑا بالکل. یہ دیکھیں یہ نارملی ریورس کا پکڑتے ہیں ہائی کیچ, جب بھی آپ اس پوزیشن میں چلے جائیں جہاں پہ وہ چلے گئے تھے نیز پہ اپنے, دیٹ مینز یو آر ناٹ کانفیڈنٹ انف ٹو کیچ دیٹ بال. سو اٹ شوز کہ موسٹلی ٹائم جو کیچز ڈراپ ہوئے ہیں دے ور ناٹ ان گڈ پوزیشن. سو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ انڈر پریشر. میں بھی بول رہا ہوں کہ شروع سے نظر آتا بہت آسٹریلین انڈر پریشر تھے, اور وہ انڈر پریشر اس لیے ہیں جو انڈیا کے خلاف انہوں نے پرفارمنس دی ہے جو ایکسپیکٹ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا ان سے, کہیں بھی انہوں نے پازیٹیوٹی نہیں دکھائی, تو وہی پرفارمنس ساؤتھ افریقہ کے خلاف تھی, کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا. ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ ان کی ٹیم پہ دیکھیں, نظر ڈالیں نا, میچل مارش, ڈیوڈ وارنر, اسٹیون اسمتھ, لیبوشین, جی 4 بیٹسمین. اچھا مچ مارش بھی بیٹسمین تو ہیں لیکن وہ بھی بیسیکلی آل راؤنڈرز میں آتے ہیں, ٹاپ 4, اینڈ دین آل راؤنڈرز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. نیچے سے اگر آپ دیکھیں 4 بالرز, 5 بالر بھی پورے نہیں ہیں, یعنی آپ 4 بیٹسمین کھلا رہے ہیں اسپیشلسٹ, اس کے باوجود آپ کے 5 ریگولر بالر نہیں ہیں. تو نہ آپ کی بالنگ پوری ہو رہی ہے نہ آپ کی بیٹنگ پوری ہو رہی ہے. ون ڈے کرکٹ از آئی تھنک اسٹل پروفیشنلس کی گیم ہے. 6 ایٹ لیسٹ آپ کے پراپر بیٹسمین اینڈ دین آل راؤنڈرز آپ کے آتے ہیں, اور پھر آپ کے پراپر 4 بالر آتے ہیں. آپ یہ مجھے لگتا ہے T20 کے لیے تو یہ ٹیم ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے, 4 اگر آپ نے, یہ اس لیے ہو رہا ہے 4 اگر آپ نے بیٹسمین کھلائے ہیں صرف, اور 4 بالر کھلائے ہیں, 1 keeper better, couple of all rounders. وسیم بھائی اس میں پتہ کیا ہے, اس میں میں بتاتا ہوں, اس میں یہ اس لیے فیل زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے جو ڈیوڈ وارنر ہیں اور اسٹیو اسمتھ ہیں یہ آؤٹ آف فارم ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ مانوس لبوشین جو ہے انہوں نے ایڈ کیا ہے, بالکل ایسے کہ کنونشنل کرکٹ کھیلنے والے انہوں نے ایڈ کیے ہیں اس میں کہ ہم جو ہے مومنٹم میں 50 اوور کھیل سکیں. صرف یہ کہ آؤٹ آف فارم ہے. لیفٹ آرم اسپنر جو انجر ہوا ہے ایسٹن ایگار, اس کی جگہ بیٹسمین لے کے آئے مانوس لبوشین. ایکچولی یو نو دس گوز بیک ٹو, سوری شعیب کنٹینیو پلیز فنش. اس میں صرف یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف فارم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جو ان کو مین ہٹ کر رہی ہے چیز ہے وہ ہے ایڈم زیمپا, جو ان کے مڈل اوورز میں وکٹس نہیں لے رہا. وہ کیا ہوتا تھا پہلے کہ یا اوپر سے آؤٹ کرتے تھے ان کے جاش ہیزل ووڈ, مچل اسٹارک اور پیٹ کمنگز, اب وہ بھی نہیں آؤٹ کر پا رہے کیونکہ آج بھی ہم لوگوں نے دیکھا ان دا فرسٹ 10 اوورز کوئی آؤٹ نہیں تھا. پھر ایڈم زیمپا وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں, تو وہ آلریڈی بیک فٹ پہ تھے اس میچ میں. تو اسی لیے معین بھائی کی بات بالکل صحیح تھی کہ ٹاس اگر جیتے تھے تو بیٹنگ کر لیتے, ایون دو اس گراؤنڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, لیکن پھر بھی آسٹریلینز نون
for taking that pressure and leading from the front. Agreed with you, but this takes us back. वसीम आपने जो बल्कि पहले मैच के इंडिया वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया की बोल दी थी, यूँ लगता है कि they've missed a trick with their selection. जो स्क्वाड उन्होंने भेजा है उसमें थोड़ा सा उनसे जो ये अब जो जैम्पा वाली उनको प्रॉब्लम आ रही है, you know, not having that extra spinner and so forth. बिल्कुल, ये तो शुरू में ही हमने कह दिया था जब we were discussing the squads. The first day, 4th I think of October in the evening के they're going to miss a spinner. अब शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा था और मिसबा ने स्पेशली कि वो जो तेज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर आज महाराज ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसका बॉल टर्न भी कर रहा था, हालांकि बॉल गीला हुआ है, बॉल ड्रिफ्ट भी कर रहा था, उसके बाद टर्न भी कर रहा था, लेंथ भी ठीक की। और मिसबा ने बार बार एक्सप्लेन किया था हमें भी और आप लोगों को भी कि यहाँ पे स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाब वही हैं जो तेज़ मारते हैं। सेंटनर को देखें वो कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक नवाज को भी इनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पे छोड़ना कम है और ज़रा तेज़ ज़्यादा मार। इवन जडेजा अच्छी कहता है, विकेट्स उसका इतनी नहीं, लेकिन वो विद इन द स्टंप खिंचा हुआ। आई थिंक नवाज की अगर आप परफॉर्मेंस देखें जो वो प्रैक्टिस मैच में भी उसने हुए, रिलेटिवली ही इज़ बॉलिंग वेल। वो जो पहले वो जिस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लो था, बाकी जितने भी आए हैं वो हाई इन कॉन्फिडेंस थे आते हुए, लेकिन अभी अगर देखें तो इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसने अच्छी बॉलिंग की है पिछले मैचेस में, तो होपफुली अगले मैचेस में और वो अपना रोल प्ले करे। All right, G, with that we're going to take a break on the pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India, and the news out of Lucknow is that South Africa have defeated Australia by a huge margin and gone right on top of the points table. हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, एक्चुअली साउथ अफ्रीकन बैटिंग की। एक दफ़ा क्विकली, चूँकि हमारे कुछ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने मार्करम को चूज़ किया था फॉर एज ए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आज भी उन्होंने एक निस सेंचुरी जो है वो गाड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है मिसबा। जी बिल्कुल। 1 पे ड्रॉप जरूर हुए थे वो 1 रन के शुरू में, थोड़ा सा वो पिच डिफरेंट था, उसकी पेस को थोड़ा सा, क्योंकि बॉल बीच में रुक रहे थे तो अर्ली ऑन कोई 4-5 बॉल लिए उन्होंने, उसके बाद फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स खेली हैं, स्पेशली 2 शॉट उन्होंने जो मारे हैं एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट शॉट, ये और इसके बाद अगला चौका मारा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स हैं। अब ये उस दिन रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने मारा है या इंडियन प्लेयर मार रहे हैं, मुश्किल शॉट होते हैं कि आपको फॉलो कर रहा है लेग स्पिनर और आप रूम बना के बल्ला अंदर से आके पूरा उस गैप में आपने शॉट मारा है, और 2 फास्ट बॉलर्स को भी बड़े ज़बरदस्त पंचेस मारे हैं, बड़ी गुड लेंथ पे बॉल थे, तो क्वालिटी ऑफ शॉट्स अमेजिंग है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। राइट। ये एक स्टैट आपकी सामने लेकर आते हैं, कैच एफिशिएंसी का स्टैट है ये। लेट्स टेक अ लुक एट दिस एंड शोएब, टेक अस थ्रू कैच एफिशिएंसी इन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया जो है वो टॉप पे है 92%, बांग्लादेश 91%, नीदरलैंड्स 83%, साउथ अफ्रीका 80%, पाकिस्तान 79%, इंग्लैंड 78%, न्यूजीलैंड 71%, अफगानिस्तान 60%, श्रीलंका 58% और ऑस्ट्रेलिया 54%, सबसे लो। मेरा ख्याल है आज के 6 भी ऐड हो गए इसके आज का भी उन्होंने ऐड करके मुझे लग रहा है दिखाया है। ये फर्स्ट टाइम है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इन स्टैट्स में बॉटम पे, लेकिन वरना ये है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी नीचे है, हालांकि उनकी दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मे भी वो ज्यादा अटेम्प्ट करते होंगे हाफ चांसेस। तो मैं तो जब वो प्ले स्टेशन पे खेलते थे ना क्रिकेट, तो उसमें भी मैं ऑस्ट्रेलियन टीम इसलिए लेता था कि उनके फील्डर अच्छे कैच पकड़ते थे प्ले स्टेशन में, ऑटो पे जो चलते थे फील्डर। लेकिन अब तो वो वाले हालात नहीं रहे, इधर तो वसीम Too much information for you. Yeah, I know. I want to share this. Is catching practice we talking about? ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 या कोई भी दुनिया में खेलने जाती है, अभी 2 मैच हुए और बेहतर होगी ये परफॉर्मेंस और चेंज आएगा इसमें। ये जरा ऑस्ट्रेलिया के कोलैप्सेस भी देख लेते हैं 2023 के अंदर, ओडीआईस के अंदर जिनके कोलैप्सेस हुए हैं, बैटिंग कोलैप्स, ये अगर आप और से देखें, ये इनका हिस्ट्री है। इन्होंने 17 मार्च को इंडिया के खिलाफ 59 for 8 कोलैप्स हुआ था, फिर 22 मार्च को 5 दिन बाद दोबारा इंडिया के अगेंस्ट ये कोलैप्स हुए थे 60 for 8, उसके बाद फिर 12 सितंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेल रहे थे 60 for 8 कोलैप्स हुआ था, फिर उसके 5 दिन बाद 17 सितंबर को फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 69 for 8 कोलैप्स हुआ था, फिर 24 सितंबर को इंडिया के खिलाफ 40 पे 5 इनके आउट हुए थे, 8 अक्टूबर को फिर इंडिया के खिलाफ 80 पे 7 इनके आउट हुए थे, और आज फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 70 पे 6 इनके आउट हुए थे। मैं ना एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मिसबा भाई ने बोला था कि मिसबा भाई ने बोला था इतने सारे ऑलराउंडर्स जो है इसमें खेल रहे हैं, प्रॉपर बॉलर्स नहीं हैं, तो जो डिफाइन करती है
प्रॉपर बैटर और अन ऑलराउंडर के बीच की चीज़ मैं Right. वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जब ऑलराउंडर्स की बारी 30 ओवर रहते हो तो आ जाए, 25 ओवर रहते हो तो आ जाए, उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है वो उनका वही है, उनको चलता हुआ मोमेंटम वाला मैच चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी जो पहले खेल गए हुए थे उनको जो है वो Correct. 6 ओवर खेल रहे थे, 7 ओवर, फिर वो अपना गेम खेल सकते हैं जाके, क्योंकि उनको इम्प्रोवाइज नहीं उस तरह करना आता, वो बैक करते हैं अपने बड़े शॉट्स को। और जैसे ही थोड़ी सी टफ पिच आ जाए तो उस पर ऑलराउंडर्स वो जो जहाँ पे फील्डर्स पीछे होते हैं वो बाउंड्री नहीं पार हो सकती, जिसकी वजह से उनके ये जो है वार्नर और स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन ये रन्स बनाएंगे तो यही ऑलराउंडर जो हैं इसी बैटिंग लाइनअप में आप देखिएगा इनके स्ट्राइक रेट जो है किसी का 150 होगा, किसी का 130 होगा। That's a good point. मलिक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वही है कि वनडे क्रिकेट 50 ओवर बहुत होते हैं। 50 ओवर में अगर आपके विकेट कीपर को मिला के टॉप 6 बैट्समैन में नहीं आता उनमें से कोई बंदा जिसको पता है कि यार ये 100 का बैट्समैन है, देन यू आर इन ट्रबल। Right. 7वें और 8वें नंबर पे ऐसे ऑलराउंडर आ सकते हैं जो फिनिशर हैं कि अच्छा यार जिन्होंने 5 ओवर खेलने हैं, 6 ओवर खेलने हैं या 10 ओवर ज़्यादा खेलने हैं, अगर आपके वो नंबर 5 से शुरू हो जाएंगे ना, जहां आपकी 2 या 3 विकेटें गिरेंगी, यू आर इन ट्रबल। Yeah. सो दैट्स व्हाई एवरी टीम प्लेज 6 प्रॉपर बैट्समैन। जितनी भी टीमें हैं उनका छठा बैट्समैन विकेट कीपर है, और विकेट कीपर उनका प्रॉपर बैट्समैन Right. है जो टॉप 6 बैट्समैन में आता है। आप एग्जाम्पल क्विंटन डी कॉक खेल रहे हैं, राहुल खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, मेंडिस खेल रहे हैं, देखिए वो लीडिंग बैटर हैं उनके। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एटलीस्ट टॉप 5 ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो प्रॉपर बैट्समैन हो, एंड देन यू कैन गो फॉर द लेकिन वो जो 15 हैं उनके पास यही हैं, वो इसी में से खेलेंगे। यही तो आज मैथ्यू हेडन बात कर रहे थे ना कि फर्स्ट यू नीड टू नो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसका हल निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे तो आप बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं तो बैटिंग आपकी 200 कर रही है, दूसरे मैच में 200 भी नहीं कर रही, तो ही है। आपको दोनों तरफ से जो है वो हिट पड़ रही है, ना आपकी बैटिंग क्लिक कर रही है ना आपकी बॉलिंग क्लिक कर रही है। तो दोनों तरफ से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। मोइन, हाउ डू यू सॉल्व दिस पजल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम राइट नाउ? पजल वसीम में जो बात करें, आई थिंक प्रिपरेशन इस साल बहुत सही दफ़ा आपने देखा, जो अभी स्टैट्स देखे तो उसमें बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है ये दोनों बिल्कुल सही बात करें, टीम सिलेक्शन करते हुए उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया या डायग्नोस नहीं की कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लाइक पिछले एरा में चले जाएं, विकेट कीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे, ऊपर जी, से बिल्कुल तो opening। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लाइक अभी देख लें जितने भी विकेट कीपर ज़्यादातर ऊपर टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे मिसबा ने बताया क्विंटन डी कॉक खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कुछ आल मैंडिस खेल रहे हैं, तो इनके पास भी ऐसा होना चाहिए था एक प्लेयर विकेट कीपर जो कि टॉप ऑर्डर्स में होता। ये मिचेल मार्श को ज़रूर खिला, इन कंडीशंस के अंदर ऐसी पिचेस के ऊपर नेचुरली वो नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, प्रीवियसली उसने स्कोर बहुत किया, बट यहाँ पे जहाँ पिचेस ऐसी हैं और उस पिच के ऊपर इतना बड़ा स्कोर लग जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रीवियसली कोई ऐसा मिचेल मार्श का एक्सपीरियंस रहा है जिसमें इस सिचुएशन में, इन कंडीशन में वो खेले हों कभी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी बिल्कुल इंडिसाइसिव हुए मैं अपने शॉट्स के ऊपर कि क्या खेलूँ क्या नहीं खेलूँ। और इनको जो नुकसान ट्रेविस हेड का हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नॉर्मली ओपन कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। वो इंजर्ड हैं, टीम के साथ हैं, दे आर वेटिंग ऑन हिज इंजरी कि वो ठीक हो जाएं तो एटलीस्ट ओपन पे वो आ जाएं, क्योंकि डेविड वार्नर की भी उस तरह की फॉर्म नहीं है जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। सो थोड़ी सी बैड लक भी है उनकी इस हवाले से। बिल्कुल है, थोड़ी सी पजल बैड लक। खत्म करने का एक ही तरीका है जी। वी आर ऑल नोन ऑस्ट्रेलियंस के वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जो कि हम लोगों ने नहीं देखी। और दूसरा एलिमेंट ये है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। वो कॉन्फिडेंस रेस करेंगे तो ये पजल खत्म हो सकती है, ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ भी। All right, with that we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back we have more packages for you। और याद रहे आपका favorite segment #AskThePavilion coming up very soon। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and the great Wasim Akram. हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच की। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन वर फैंटास्टिक एंड बिग collapse for Australia. Let's talk about the outstanding work the South African bowlers did today, Wasim. Look at that bowling card that we have in front of us.
they really impressive. I think Nagidi bowled beautifully with the new ball. वही back of a length जो बात करते हैं, around the wicket उसने वार्नर को तंग किया, इधर से आया तंग किया, and Jansen की pace और उसका कद शुरू में उसने तंग भी किया उनको. So and then of course when Rabada came, अगर उसकी हम आपको pitch map दिखा सकें थोड़ी देर में, अगर आप देखें तो most bowlers South African bowlers ने वो जो 6 से 8 meters की length होती है, back of a length within the stumps, वहाँ bowling की है, इसलिए problem हुआ. और बॉल भी सीम हो रहा था. और महाराज की तो मैंने तारीफ़ की है, वो हम सब शुरू से कर रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त बॉलर है, क्या वेरिएशन है, किस तरीके से वो वाइड आता है. और मैं लेंथ की बात कर रहा था, बैक ऑफ अ लेंथ जैसे हम कहते हैं ना, वो ये होता है जी, जस्ट बैक ऑफ अ लेंथ हिटिंग द राइट एरियाज, एंड दैट वाज द ब्यूटी, दैट वाज ब्यूटी, सिंपली अनप्लेबल फ्रॉम रबादा. छोटा टोटल चेस कर रहे हो या बड़ा टोटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विकेट्स. विकेट्स मिली हैं, यहाँ पे 50 पे 3 आउट हुए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गए नो. और जैसे मलिक ने बताया कि 2 जो मेन प्लेयर जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो जल्दी आउट हो गए. तो यहाँ पे जो प्रेशर आया ना, वो उस वक्त कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो ये कंडीशन से निकाल सके उनको, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है और पिच भी डिटेरियोरेट हुई है जैसे जैसे इस पे बॉलिंग होती है. ये पिच मैप आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये वसीम आपने खास तौर पे इसको पॉइंट आउट किया था. ये ज़रा पहले देखें, ऑस्ट्रेलिया का पिच मैप आएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का पिच मैप है पहले 10 ओवरों का, और फिर ये साउथ अफ्रीका का. लुक एट द साउथ अफ्रीकन पिच में 62% ऑफ द डिलीवरी जो मैं बात कर रहा था 6 to 8 मीटर्स और 30 शॉट. सो उन्होंने उनको ड्राइव दी नहीं, उनको जो ड्राइव मिली, जो मिलेगी इस मैच में जो मिली है वो वही मिली है होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से होटल. बाकी सारी बैक ऑफ अ लेंथ विद इन द स्टंप्स. रूम भी नहीं दिया. और एक अच्छी चीज़ की है कि पूरा होमवर्क करके आए हैं साउथ अफ्रीकन. नॉर्मली रबादा जो है नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, लेकिन फर्स्ट चेंज पे करवाया. तो पिछले मैच में भी आई थिंक फर्स्ट चेंज पे आया था जी, इसीलिए उन्होंने उसको फर्स्ट चेंज पे करवाया. हो सकता है कि वो बहुत जो है आइडियल हो उनके कॉम्बिनेशन के लिए, साउथ अफ्रीकन के लिए, कि उन्होंने नए बॉल से जो है उसको फर्स्ट चेंज पे लेके आए और जो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए थी. क्योंकि नोकिया जो है उनके इंजर्ड हो गए थे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. तो हो सकता है कि उस चीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने रबाडा से वो वाली चीज़ कर रहे हैं. इस दफ़ा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो काफ़ी होमवर्क करके आई है. लुक्स लाइक दे हेट टू स्टे टिल द लास्ट. Yes, but they always have great momentum in previous, but this I think is the they want to finish it like all the way, go all the way. Even जो नगीदी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रीवियसली अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा फिटनेस वाइज ऐसे लगता था कि जैसे थोड़ा उनका वेट ज़्यादा था. फिट होके आए हुए और 87-88 पे बॉल कर रहे हैं, तो प्रॉपर बॉलिंग हो रही है और बिल्कुल बैक ऑफ लेंथ आप देखें, स्विंग भी हो रहा है बॉल और बॉल आके लग रहा है बल्ले को. उससे अंदाज़ा होता है बाउंसर सारा कुछ वो आप देख रहे हैं, हर किस्म की वेरिएशन नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग में. प्रॉपरली प्लान करके आउट ये किया. कितना ज़बरदस्त सेटअप किया है उन्होंने बिल्कुल. वार्नर और इससे पहले चेंज अप्स भी किए हैं 1-2 उन्होंने. तो बिल्कुल वार्नर को मोमेंटम समझ नहीं आ रहा था कि मैं बल्ला तेज़ मैंने लेके जाना है या स्लो. 2 एक स्लोअर वन बीच में किए हैं और फिर नॉर्मल पेस पे बॉल किया, तो वहाँ पे वो एक पूरा सेटअप लगाया हुआ था फील्डर्स का, कैच आउट करा. 8 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए उसने. इकोनॉमी 2.25 की विकेट एक लिया, बट जब शुरू में उसने प्रेशर क्रिएट किया अपनी लेंथ से, अपनी पेस से और अपनी वेरिएशन से, इसकी वजह से दूसरे बॉलर्स को दूसरे एंड से विकेट मिली. वसीम भाई, इनकी बॉलिंग में आप जो सबसे बड़ी चीज़, पांचों बॉलर आपको ऐसे लगता है जो भी आएगा तो विकेटें लेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा, विकेटें लेगा. पांचों के पांचों बॉलर ऐसे हैं कि भाई कोई भी ऑन अ डे आपको मैच विकेट्स लेके जिता सकता है. That's why they are at the moment I think one of the best team. महाराज की आपने बात की वसीम, तो उनका भी इकोनॉमी रेट 3 का था. आज बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने भी की है. So this is a really very impressive bowling card from the South Africans. But there is another thing that I'd like to bring up, gentlemen. और वो था स्मिथ का आउट, जो DRS के ऊपर वो रिव्यू किया गया. ये अब आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आते हैं. I'll open the discussion on this floor for all of you. That Smith, the keeper is going down the leg side. Smith is clear. I mean, it looked to me that's not out. But अब इसको ज़रा गौर से देख लीजिए आप लोग. You see that,
एंड यू कैन सी द ऑफ स्टंप आपको नजर आ रही है लेफ्ट पे क्लियरली, Yes. ठीक है ना, बॉटम पे अगर आप देखें वो ब्लू बॉटम पे, ये इम्पैक्ट पे Impact पे। भी, और इम्पैक्ट नी रोल के ऊपर है, नी रोल के ऊपर है, और उसका जो फ्रंट लेग है वो पूरा वो भी पंजों पे। हाँ वो भी हवा में है, हाँ, वो भी पंचों में। लेग स्टंप नजर भी नहीं आ रही हाँ, ना leg पीछे stump से, हाँ। लेग स्टंप नजर आती तो यहाँ से नेकेड आई से लग रहा है, स्ट्रेट अवे लग रहा है Not it's gonna miss the stump Miss stump. at least by an inch. राइट, और अगर वहां से नहीं होगा तो स्टंप्स के ऊपर से चला जाएगा। And look at this DRS, This showed DRS hitting doesn't middle make it- of leg stump. So even Smith is not happy with that impact and that DRS decision. He can't understand why he got 3 reds there. अंपायर इतना सरप्राइज हुए जब बाहर से डिसीजन आया ऑन फील्ड Look अंपायर at the expression on the umpire's face. Even he is surprised, but he can't believe that he gave a bad decision, right? Because his decision has been questioned here, and he's been put on the spot. स्ट्राइकर एंड पे जो बैटर हैं अंपायर ने उनको भी मतलब यूं किया है कि आई डोंट नो I don't know how that happened. ज्यादा से ज्यादा वो यही सोच रहे थे कि अंपायर कॉल हो जाएगा हिटिंग पे Right. एंड दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग एट दैट टाइम ये अच्छा फिर ये स्टोइनिस का भी सजेशन एक सेकंड इस पे करते हैं, भी स्टोइनिस का भी आउट देख लेते हैं पहले। मोइन, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, इज द स्टोइनिस विकेट एज वेल। ओके, हियर इज अनदर विकेट। So this was a referral to the leg umpire, third umpire. थर्ड अंपायर, So he had all the technology in the world. राइट। अच्छा, ये उसका हाथ देखे, राइट वाला बॉटम हैंड छूटा हुआ है, तो वो तो और नॉट आउट अगर होता है साइड बल्ले जी से नॉट आउट होता है, बिल्कुल। ये भी एक बड़ा डाउटफुल डिसीजन लेकिन हुआ जो है। थर्ड अंपायर ने उस टाइम साथ बताया है कि इट वाज स्टिल इन कांटेक्ट विद द बैट व्हेन द बॉल हिट किधर है contact? अब देख, अब लगा कांटेक्ट पूरा हाथ हल्का- लाइट पे नजर आ रहा है। हल्का grip सा छूटी हुई है उसका ना जो पूरी। है वो Could be। उसकी नहीं, जजमेंट देखिए, यही बात सही कर रहे हैं मोइन। देखिए जब ये स्पाइक आपको नजर आ रहा है, उस वक्त ग्लव जो है वो अवे है बैट से। बैट से अवे है ना। दैट्स व्हाट ही सेड। थर्ड Right. अंपायर ने जो बताया कि कांटेक्ट था उसका, स्लाइड्स और कांटेक्ट बैट चले इसको तो हम डिबेटेबल कह सकते हैं, बट मैं वापस आता हूँ, वो डीआरएस वाला जो है, जो स्मिथ वाला है, दैट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट। हैव यू हैड एनी बैड डीआरएस डिसीजंस दैट हैव हैपेंड इन योर करियर्स? आपके में तो उठाई नहीं, बट इन दोनों के, शोएब के। काफ़ी हुए हैं और इसके प्रोटोकॉल्स भी चेंज हुए। आई डोंट नो अब क्या इसका चल रहा है, बट मुझे, क्योंकि मैं कप्तान था और वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा खेले हैं दुबई में क्रिकेट, तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती थी, तो जाके हम उनसे डिस्कस भी करते थे। एक तो जब फुलर बॉल लगता है, शान मसूद का मुझे आउट याद है फुलर लेंथ बॉल पे, जो कि क्लियरली हो रहा था, बॉल बहुत बड़ा क्लियरली लग रहा था कि ये बॉल विद द एंगल चौथी पांचवी स्टंप पे चला जाएगा, लेकिन वो जब हिट हुआ है तो उसके बाद जो फुलर बॉल है, समटाइम्स क्या होता है वो लगता है, तो क्योंकि बॉल ट्रैवल नहीं करता डिस्टेंस, तो वो जो आपका होका है या वो उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकता कि भाई इससे कितना घूमना था पिच होने के बाद। बॉल पहुंचेगा तो वो कहाँ तक वो पहुंचेगा, सीधा दिखा देता है, सीधा दिखा तो वो उसने पूरा हिट करा दिया। और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ में एक दो में लेग बिफोर हुआ, मेरे फ्लैप पे बॉल लगा, पैड यानी कि नी के ऊपर, नीक से ऊपर लगा, बट जब वो इम्पैक्ट दिखाया और रिप्ले में उन्होंने आउट दे दिया, तो वो जो इम्पैक्ट आया वो नी रोल पे आया। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि यार मुझे बॉल ऊपर लगा है। लेट मी रिफ्रेज दैट, आपको बॉल लगा थाई के ऊपर तकरीबन, राइट, नी रोल के ऊपर, ठीक है, और जो रिप्ले पे जो डीआरएस चलाया नी रोल से ऊपर लगा फ्लैप पे, फ्लैप पे, पैड जब एंड मैं जहाँ पैड है ऊपर, राइट, इम्पैक्ट और जब आया तो वो नी रोल, तो वो मेरा गैस ये था कि जब बॉल गुजरता आपके, ये फर्ज करें बीच में आपका नी रोल है, वहाँ से जब गुजर रहा था तो उसने एक फ्रेम पहले वहीं पे इम्पैक्ट दिखा दिया, और ऑब्वियसली उस टाइम पे बॉल अभी उसने पूरी हाइट नहीं ली, वो वहाँ लगा तो वो स्टंप्स को हिट कर गया। अगर वो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखाता तो वो निकल जाता। तो ये अभी भी लूप होल्स स्टिल इसमें मैं ये कह रहा था कि जी। एक सजेशन ये है कि जहाँ पे ऑपरेटर बैठता है, जो ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, तो वहाँ पे भी आईसीसी को चाहिए ब्रॉडकास्टर के साथ बात करें कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठा हो जिसने क्रिकेट खेली हो, जिसको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है रिवर्स स्विंग हो रहा होता बॉल, अभी जो मिसबा ने जिस डिसीजन की बात की है शान मसूद का, वो इतना बड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा था, जिस जगह बॉल लगी है वहाँ से अगर वो विकेट तक ट्रेवल करती तो वो छठे स्टंप पे ख़त्म होनी थी। ये मैं अपना आंखों देखा वाकया, मैं उस टीम का मैनेजर था, बाहर बैठा देख रहा था, तो इस पर किसी को भी कभी यकीन नहीं आया किसी क्रिकेटर को। तो इसलिए बेटर है कि वहाँ पे जहाँ ऑपरेटर बैठे होते हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठा
expert I cricketer. don't want to comment on it because I don't know how it works. Right. Although I've been commentating for 20 years, but never had the I suppose during the game आपके पास time नहीं होता कि आप जाके नीचे उनके साथ बैठो और उनसे पूछो कि how does it work. But next time I'll definitely find out that how ये DRS काम कैसे करता है, once impact कैसे दिखाते हैं, वो line zone में कैसे आता है, वो लगने के बाद जो दिखाते हैं कि ये hit कर रहा है कि नहीं, ये करते कैसे हैं. Let me find out properly. इस पे बिल्कुल मोइन भाई वाली, जैसे मोइन भाई ने कहा कि रिवर्स स्विंग हो रहा था, या मोस्टली हम देखते हैं DRS वाला कि जब इम्पैक्ट जहाँ पे होता है बॉल का, उसके बाद बॉल यूजुअली सीधा दिखाया जाता है. Yeah. सीधा दिखाया. यूजुअली यही हम देखते हैं, यही जो देखते हैं. नेकेड आई से देखते हैं. That's why तो Malik, they always say it's not 100%. Yes, It's just there to 97. blunders को कम करने. ह्यूमन एरर जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो तो उनके यही मैं पास कह रहा हूँ ये ना, चीज रहे कि वो अगर आपने हम क्या जा किया, ही नहीं आप रहे ये उस कह रहे हैं पे. कि हमने जो ह्यूमन एरर ऑन ग्राउंड हो रहा है उसको यहाँ से उठा के इस ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हम इधर कमरे के अंदर ले गए. I mean, technology, the idea of technology is that it is science, it's mathematics, it is absolutely accurate, and that's how a decision should come out without any human interference. आपके वाली suggestion कि वहाँ पे अगर एक क्रिकेटर को बिठा दिया जाए तो then again you have human input into the whole thing. नहीं, बट वो उसको गाइड जरूर कर सकेगा. बॉल अगर टर्न हो रहा है बहुत ज्यादा, किसको गाइड कर रहा है? वो कंप्यूटर को तो गाइड नहीं कर सकता, ऑपरेटर को कर रहा है ना. मेरी कहने की मकसद की बात जो है वो ये है कि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गई है एक दफ़ा टेक्नोलॉजी के अंदर भी, टेक्नोलॉजी शुड बी फ्री ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे एक क्रिकेटर होना चाहिए जिसने क्रिकेट खेली है, जिसको आइडिया है कि बॉल में कितना बाउंस है या कितना टर्न हो रहा है या कितना रिवर्स स्विंग हो रहा है और गेंद किधर फिनिश करेगा. वहाँ नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं. So this is what I'm saying. फखर वहाँ नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पर किसी को बैठा ही नहीं होना. द टेक्नोलॉजी शुड बी कंप्लीट. ये टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती. कैसे नहीं आ सकती? नहीं, मुश्किल है भाई मेरे. देयर आर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल तो मैं तलवारा फाड़ लो ना, लड़को. has gone really far out. Technology has really gone. अगर आप जाएं टेनिस पे जाएं, आप फुटबॉल पे जाएं, you will see technologies that are outstanding. अगर आप बॉल पे चिप लगा दें तो उनके भी प्लेयर्स जो कंप्लेन कर रहे होते हैं हॉकाई पे, ये सारी चीजों पे उनके प्लेयर्स भी कर रहे होते हैं कंप्लेन करते हैं. पूरी दुनिया कह रहा हूँ. बॉल आ गया हुआ चिप वाला लास्ट ईयर IL T20 में यूज हुआ है. इंशाल्लाह मोइन भाई, इस प्रोग्राम के इस वर्ल्ड कप के एंड तक हम आपको अपग्रेड कर चुके होंगे टेक्नोलॉजी के साथ. आप पहुंचाएंगे, ठीक है ना. मोइन 5.0 version. With that, we're going to take a break right here on the pavilion. When we come back, we've got more on the other side. All right, welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. और ब्रेक में जाने से पहले हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे और एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन थी उसके बारे में बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे. और ब्रेक पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शोएब मलिक लेकर आए. सो शोएब, इट्स ओवर टू यू. जी बिल्कुल. मुझे वो डिसीजन इसलिए नहीं समझ आता कि जब स्टीव स्मिथ को बॉल लगा वो वाला, तो उनकी ऑफ स्टंप नज़र आ रही थी और उनका जो फ्रंट वाला फुट था वो ऑलमोस्ट एयर में था और बॉल लगा है उनके नी से थोड़ा सा ऊपर. जब ऑफ स्टंप नज़र आ रही हो और बॉल यहाँ पे लगा हुआ हो, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो स्टंप्स को कैसे लगा है वो बॉल. इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव. एक और चीज़ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, वो ये है कि रबाडा राइट हैंडर बॉलर हैं, तो जब उन्होंने बॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली एंगल बना हुआ है. जब बॉल जा रहा था लेग स्टंप की तरफ तो वो एंगल बना हुआ था. ज़्यादा क्लोज टू द स्टंप उन्होंने वो बॉल किया नहीं था जो मैंने देखा नेकेड आई से. यहाँ पे होंगे वो, तो वो एक ऑटोमेटिकली एंगल बन गया कि वो बॉल लेग स्टंप पे जा रहा है. ठीक है. और ऑफ स्टंप भी नज़र आ रही है जब उनको बॉल लगा है. एक तो वो ऐसी हाइट थी कि जहाँ पे वो स्टंप्स को जिस जगह पे दिखाया गया है इस जगह पे कि वो बॉल लगा है जाके, इट बहुत मुश्किल काम है. और दूसरा एक और चीज़ उसमें ये हुई कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल होता, बॉल टर्न होता तो वो लग जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन पेस बॉलर का एंगल बना हुआ बॉल वो इस तरह जाके स्टंप्स में लग जाए, ये मुझे नहीं समझ आता और मुझे इसीलिए बहुत अजीब सा डिसीजन लगा ये वाला. All right, well taken, Shoaib. Thank you. 5.0
शोएब मलिक? नहीं, ये तो अभी आप रुके आप अपग्रेड हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. We'll get you going with the technology, with machine learning, deep learning, AI and so forth and so on. All right, with that it's almost time for another break, but याद रहे कि ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे आपका फेवरेट सेगमेंट #AskThePavilion. सो अपने सवालात अभी से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भेजना शुरू कर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम में आपके सवालात, आपके कमेंट्स और आपके ओपिनियंस को शेयर कर सकें. Keep watching The Pavilion. Welcome back to The Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways. Right, time for the way forward. Let's talk about the way forward for Australia. Shoaib. थैंक यू. You're welcome. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस. हाँ, बिल्कुल था. अब वो यही है कि जो स्टीव स्मिथ हैं और डेविड वार्नर, दे शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब वो रन्स बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो ओवर्स हैं वो भी किल होते हैं, और जो ऑलराउंडर्स हैं जिन पे वो हाईली डिपेंड करते हैं उनका गेम जो है वो फिर ऊपर चला जाता है. एक ये चीज़ है. और दूसरा, अब मुझे नहीं पता कि वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर कैसे लेके आ सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन में 15 के अंदर से, वो उनका करना बहुत ज़रूरी है. I doubt they have extra spinner. या एक और चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैम्पा मिडिल ओवर्स में मार खा रहे हैं और ऊपर से विकेट्स भी नहीं आ रही तो दें उसको नया बॉल, ऊपर से शायद वो 2-3 विकेट्स, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अपना कॉन्फिडेंस को रेज करना पड़ेगा और उनको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो 2 मैचेस में देखी नहीं गई. अगर मगर पे आ गई बात. अगर तो 15 नहीं है तो फिर अगर मगर आ गई. Alright, दोस्तों, वक्त हुआ है #AskThePavilion का. आप लोगों के सवालात आने शुरू हो चुके हैं और ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है #AskThePavilion. पहला सवाल लेते हैं आज इमरान अजहर, आपका ट्विटर हैंडल है इमराज, IMRAZH. So इमरान अजहर, आपने पूछा Ask the Pavilion, request to Fallon B3 and the 4 legends. Any chance of getting our women cricketers as guests in your show? Let's celebrate the great feats they have recently achieved in cricketing world through the best sports show of the world, The Pavilion. You guys rock. Thank you, Imran Azhar. And yeah, we would love to have them over here. I think all 4 of us would like to have them here. We'd add more chairs and bring them here and talk to them, take their perspective, and they've made us really proud. Some of our performers. They really did, yeah. जो भी facilities उनको मिली हैं अब बेहतर हो रही हैं. हमारी लड़कियाँ बहुत बेहतर हो रही हैं. That's great sign for Pakistan women cricket. I have a question from Zuhaib Ahsan. जी. और उनका हैंडल है, Zuhaib Ahsan की एक बात है कि वो अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करते. ठीक है. अच्छा. उनका हैंडल है genius_Zuhaib. जीनियस को अगला कहे Zuhaib बेटा तो अच्छा होता है, अपने आप को जीनियस का नजर a bit odd. क्वेश्चन उसका ये है कि हम सबसे है, do you guys go home after this show and come again in the morning? Or the channel has given you rooms in the studio. It must be very tiring to sit in the show the whole day. Kudos to all of you. Thank you, Zuhaib. It depends. Most of the days we are here all day. We have a comfortable sofas. We get looked after really well by the channel. So thank you very much, everyone behind the scenes. And they make us really comfortable here. Am I right? ये तो था ऑफिशियल वर्जन. नहीं, ऑफिशियल वर्जन होती रोटी खा के पैसे मुका देते हैं. ये तो था ऑफिशियल वर्जन. ये तो ऑफिशियल वर्जन ही था. और कोई नहीं, यहाँ पे थैंक यू मिसबा भाई का भी करना चाहिए. वो भी हमें एंटरटेन रखते हैं उस कमरे के अंदर. नॉन स्टॉप मुसलसल. जी, तसलसल के साथ. उस कमरे में जहाँ आप नहीं होते पूरा दिन. मैं इसलिए निकल जाता हूँ. और अंदर निकलना है. भाई ने सारा हॉल है हाथ रखना सारे. थैंक यू ज़ुहैब फॉर आस्किंग दैट. रियली अप्रिशिएट इट. तहनून रजा का डैलस से सवाल है और here we go. Tehnoon Raza, thank you for sending it out all the way from Dallas. Your show takes the World Cup excitement to a whole new level. Please keep up the great work. Right, thank you very much. As the tournament progresses, the disadvantage for teams batting first is also going to increase significantly. There would be no reverse swing available for the bowlers in the second innings, and dew will arrive sooner in the second innings as we get closer to winter. How crucial is the toss in this World Cup, and how should Pakistan approach their game if they have to bat first in a crunch game? Gentlemen, it's open for everybody. Misbah, let's start with you. I think थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ही जाता है जिस वेन्यू पे आप जाते हैं. नॉर्मली आप 1-2 दिन पहले जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं अंडर लाइट्स, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कितनी ड्यू पड़ रही है, और उसको देखते हुए और फिर आप पोजीशन को देखते हुए और पिच को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कैसा डिसीजन करते हैं. अगर तो पिच नॉर्मल है, आपको समझ आ रहा है कि ये पिच अच्छा खेलेगा फर्स्ट टाइम पे, एंड देन सेकंड टाइम पे इतनी ज़्यादा चेंज को नहीं होगी पिच, और स्लाइड से भी आपको ख़तरा है ड्यू का, तो देन आई थिंक बेटर टू जस्ट
بال فاسٹ. ڈرائی کنڈیشنز میں آپ کے اسپنرز کو تھوڑی سی ہیلپ بھی ملتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا سری لنکا کے میچ میں انڈر لائٹس تھوڑا بال بہتر آیا بلے پہ. رائٹ. تو یہ اس ٹائم پہ وینیو کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسیجن کرتے ہیں اور اپوزیشن کو دیکھتے ہو. سمپلی اچھی ٹیمز جو ہیں وہ اس کو نہیں رکھیں گی دماغ میں ڈیو فیکٹر, بیکاز ٹاس ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. کنٹرولنگ. اور اگر آپ بہت زیادہ ڈسکشن کریں گے ڈریسنگ روم میں تو اس میں ڈفرینٹ نیچر کے آپ کے پاس پلیئرز بھی ہیں. کچھ کو وہ ہٹ کر جاتا ہے, کچھ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آئے گا تو تب دیکھیں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے نہ زیادہ سوچا جائے کہ ڈیو فیکٹر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ہاں, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ضرور کرنا چاہیے, جاوید بھائی بھی ہم سے کرواتے تھے, جب ویٹ بال سے بولرز بولنگ کریں تاکہ وہ یوز ٹو ہوں, پریکٹس کریں, وہ یوز ٹو ہوں. اور جو بیٹرز ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ویٹ بال کے اگینسٹ بیٹنگ کریں. یہ تو بولنگ بیٹنگ ہو گئی, لیکن فیلڈرز بھی ہمیشہ وہ کیچز کریں. گیلے بال سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بال جو ہے سلپ ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے. تو یہ آپ prepared رہیں کہ آپ کی کبھی بھی جو ہے سیکنڈ Always be prepared. That's the best thing to do. Tenoon Raza, I hope you got your answer. With that, we go to G. Mustafa Khan. M. Mustafa handle ہے آپ کا. G. Mustafa Khan کہتے ہیں Asif Pavilion, Imam has still not scored any runs in almost 5 matches. So shouldn't Pakistan take risk and have Fakhr open with Abdullah? Point. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی ضرورت ہے. اتنا بڑا میچ جیتے ہیں اور وننگ کمبینیشن کو ہٹانا بھی صحیح نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ 2 ہی میچ ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے ابھی, اور فخر کو ریسنٹلی آپ نے باہر کیا, تو 1-2 میچز, 2 کم از کم اننگز بنتی ہیں اس وقت امام کی. 2 اننگز اس کو دیکھیں. بہت اچھا کرکٹر ہے, فائٹنگ اسپرٹ نظر آتی ہے, کم بیک کرنے کا ایک چیلنج لیتا ہے وہ. تو آئی ہوپ کہ یہ جو اگلے 2 میچز ہیں اور سب سے بڑا میچ 14 کو جو انڈیا سے ہے, تو یقیناً ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ ڈراپ کرنا چاہیے. لیٹس سی another 2 innings of him and then decide. All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, there are more questions with the hashtag Ask the Pavilion. We'll see you on the other side. Right, welcome back to the Pavilion, and we have hashtag Ask the Pavilion questions going on right now. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram with me, and I'm going to take this question. یہ سوال آیا ہے Shoaib Malik آپ کے لیے اور مصباح آپ کے لیے. سید دانیال حیدر جعفری کا سوال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مصباح and Shoaib bhai, don't we have any update about Pakistan team training sessions, especially for fielding, to improve fielding? Fielding had cost us a lot of big games. Any updates? ابھی یہ کر رہے ہیں کوئی, یا ہم نے تو ریسٹ کر رہے ہیں? What is going on there with the team? کوئی No idea. اپڈیٹ نہیں ہے کوئی. We have no update. All right. ایک اپڈیٹ تھی کہ وہ احمد آباد پہنچ گئے. That was the only one. Yeah, They that got was quite the nice only one. reception. وہاں پہ بھی ہوٹل پہ. اور آف ڈے لیا ہوگا انہوں نے کیونکہ they've already played 2 games. They've been so- playing for so long. Interesting خبر جو میں شیئر کرتا ہوں کہ hotels are completely overbooked in Ahmedabad. So people have actually started booking hospitals and checking themselves. وہ جو hospital کے VIP وہ نہیں ہوتے کہ یار میں بیمار ہوں, میں ذرا کمرہ دے دیو تو فیملی کے ساتھ اندر, اور وہاں سے سیدھا میچ پہ. I have a question. That's the passion. I have a question. But Yes, please. My question is from Daniel Ahmed. Daniel Ahmed 33 उनका है handle. We always talk about power hitting. And Azam Khan is one of the best power hitters in Pakistani cricket circuit. So from Moin Khan, presence है आपकी इधर. How does Azam practice power hitting? क्या practice है उसकी कुछ? اعظم نارملی وائٹ بال کرکٹ ہی پریفر کرتا ہے, اور جب بھی اکیڈمی جب کراچی میں ہوتا ہے تو مین وکٹ پہ جا کے بیسکلی وہ بڑی ہٹس کی پریکٹس کرتا ہے, اور وہی زیادہ نہیں ڈرل تو اس میں کرتا کوئی اس کا بیلنس ہوتا ہے کہ ویٹ یہاں ہونا چاہیے, یہاں ہونا چاہیے, کہ ہر طرح کی مارک. وسیم بھائی سب سے اچھی چیز پتہ کیا ہے, ماسٹر کلاس ود ملک دیکھیں, اعظم خان کے ساتھ پورا شو ہے اور اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی, یہ پاور ہٹنگ کیسے کرتے ہیں اسپنرز کے اگینسٹ یا پیس بولر کے اگینسٹ. بٹ یہ اس وجہ نہیں تو موین بھائی بھی آئے تھے, موین بھائی بھی آئے تھے, میں نے موین بھائی اتنے سیشن میرے ساتھ اس نے نہیں کیے ہوں گے جتنا شعیب کے ساتھ کیا. بیلنس کا ویٹ کا اعظم کا الحمدللہ اتنی بڑی بڑی کلائی ہیں اس کی, اور جب وہ چھکا مارتا ہے اس کو کوئی ویٹ شیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف کلائی ہلاتا ہے, وہ بال اب اعظم کی بات آئی ہے تو میں چھوٹی سٹوری سنا رہا ہوں. موین بھائی آپ نے کچھ نہیں کہنا, کہہ رہے آپ اس کو کچھ نہیں کہنا. ہاں ہاں وہ میں گھر پہ تھا دبئی میں, تو مجھے نا اس کا کال آیا, میں دبئی آیا ہوا ہوں, رمضان تھے اس وقت, تو میں نے کہا اچھا یار پھر گھر آؤ سحری کرتے ہیں. لیٹ آیا اس کا کال, پوسٹ مڈ نائٹ, تو کیونکہ ہم روزہ رکھ کے ہی سوتے ہیں, روٹین ایسی بن جاتی ہے, تو مجھے کال آیا, میں نے کہا ہاں چلو پھر سحری نا میں کرواتا ہوں, گھر پہ بیٹھتے ہیں.
اس کا مجھے کال آیا کہ لوکیشن بھیج دیں. میں نے اسے لوکیشن بھیجی. میں نے کہا کیا کھاؤ گے؟ کہہ رہا جو آپ کھاتے ہیں. میں نے کہا یار میں اولیو آئل کا پراٹھا کھاتا ہوں اور ساتھ میں آملیٹ کھاتا ہوں. کہہ رہا بنوا لیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کے لیے 6 انڈوں کا ماشاء اللہ بنوایا آملیٹ. کوئی میرا حال 4 سے 5 پراٹھے تھے لیکن وہ ذرا پتلے پتلے تھے تھوڑے سے میرے ٹائپ والے. ماشاء اللہ معین بھائی اس نے وہ کھائے ہیں ود ان 3 منٹس. پھر 6 کا میں نے اور آملیٹ بنوایا. چاچو تے گیا ہے یہ چاچو بیٹھے اس کے اور مزے کی بات بتاؤں, پراٹھے تھے پڑے ہوئے ٹیبل پہ, آملیٹ ختم ہو گیا, 2 اس نے خالی چائے میں ڈبو کے کھائے. یہ بات اعظم تیری شاباش. ایسے ہوتی ہے پاور. نہیں ایسے پاور, ایسے آتی ہے پاور, ایسے آتی ہے پاور. I have a question from Saqib Rehan Saab. جی جی. انہوں نے کہا my question is that why is this program going off air after the tournament ends? Why don't you guys keep it running? Is for JJ, I think. Jarjeet Seja. Well, you know that you bring this up, I give you another one. This one was a very long one, تو میں نے لکھ لیا تھا. نیرج گپتا نے یہ میسج کیا, and it's really appreciated. نیرج گپتا. Hello guys, I'm a senior executive at a global tech giant in Palo Alto, California. My friends and I from India and Pakistan in the Bay Area watch the pavilion religiously. Thank you very much, gentlemen. Though I grew up on American sports, I have found a newfound love for cricket because of your show. My friends and I would love to host you all in California. We have a suggestion and request. Please make Pavilion a regular show. It's the same thing. JJ sun rahe ho? JJ sun rahe ho? JJ sun rahe ho? یہ repeat JJ بھائی تو کر دیں یہ والے سوال کرو کروا دیں گے. پروڈیوسر صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں ثاقب فرشوری صاحب آپ لوگ 1 مہینے میں نہیں سنبھلتے, پورا سال کون سنبھالے گا آپ لوگوں کو. لیکن ایک چیز ضرور چلے گی بہت اچھی, یہ ماشاءاللہ 2 لوگوں کی وجہ سے نا اس ایریا میں بہت سارے ریسٹورینٹس کھل جائیں گے. یہ بات صحیح, کھل گئے ہیں. دیکھو as long as we're supporting our economy everything is good. کرو فارغ ہو جائیں گے. ہاں کرو فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اتنے ہی رہو کراچی. نہیں ہوا ہوگا تو خیر ویسے بھی کوئی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے گھر پہ. خیر ریلیکس کریں. میرا نام آلرائٹ جناب, سینس آف ہیومر اچھا ہو گیا بہت. ہاں ویری گڈ, ویری انٹلیکچوئل, ویری انٹلیکچوئل. My question is for Wasim Akram that in the next game versus India, should we trust Shadab or should we trust Shadab or give Usama Mir a chance? Although it's a big game, so what is your opinion, sir? It is a big game and there's no point. ابھی میچ جیتے ہیں 2 میں, دونوں میں 2 جیتے ہیں بلا وجہ. I know, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں, a lot of people want Usama to play but Shadab will come, he will perform with the ball جس سے ہم ضرورت ہے ہمیں. اور اتنے بڑے میچ سے پہلے آپ کسی نئے لڑکے کو میچ کھلانا اور وہ بھی وننگ ٹیم کے کمبینیشن سے will be bit difficult for پاکستانی اسکپر. جس طرح وہ اسٹرگل کر رہے ہیں وسیم بھائی, there is no harm thinking out of the box. کیونکہ اسامہ کو ان کے بیٹرز میرا نہیں خیال پہلے کھیلے ہیں. تو ایک نئی چیز you're giving. Then Nawaz will come at 7 because Usama is not an all-rounder or like Shadab. And Usama is not a gun fielder either like Shadab. یہ بھی دیکھنا ہے آپ لوگوں نے. اور اگر انہوں نے آؤٹ نہ ہوئے, رنز ہی اتنے بنا دیے, پھر پاویں 11 بیٹسمین پاس ہو. Yeah, fair call. It depends on captain. I hope not. I hope it's a good competitive game. Yes, that goes all the way to the last over. Whichever team wins, you know, as long as it's a good game. جو آسٹریلیا میں ہوا تھا T20 ورلڈ کپ کے اندر جو گیم جس میں وراٹ کوہلی نے ایک بلائنڈر آف این اننگ کھیلی تھی, I think that was a fantastic game of cricket. We all loved it. Regardless of what the result was, it was a fantastic game of cricket. With that, let's take a look at what we have in store for you tomorrow. کل آپ لوگوں کے لیے یہ میچ لے کر آ رہے ہیں. کل کا میچ نیوزی لینڈ بامقابلہ بنگلہ دیش ہے. چنائی سے یہ میچ آپ کی خدمت میں 1:30 بجے کل دوپہر کو براہ راست آئے گا اے اسپورٹس پہ, 10 اسپورٹس پہ اور ARY زیپ ایپ پہ. اور ہم نیوزی لینڈ بنگلہ دیش کے اس میچ کی کوریج کو لے کے آپ کی خدمت میں پیویلین کے ساتھ حاضر ہوں گے 12 بجے کل دوپہر 12 بجے. ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اینڈ ود دیٹ آئی لائک ٹو تھینک یو شعیب, تھینک یو ویری مچ. موین, تھینک یو ویری مچ. مصباح, تھینک یو ویری مچ. وہ ایک شفقت چیمہ کی بڑی فیمس لائن تھی وسیم جو آپ بریک میں ہمیں بار بار سنا رہے تھے, وہ ایک دفعہ کر کے دکھا دیجیے. کیونکہ موین بھائی بھی ریڈی ہیں آواز نکالنے کے لیے. ذرا میوزک بند کیجیے, میوزک بند کیجیے گا, میوزک بند کیجیے گا. It's actually a dialogue, so there's nothing vulgar about it. No, but please do it. We love it. This is best TV at its finest and Pavilion at its finest. That's not fair. Ready? ڈائلاگ بولے. Ready? Action. اوئے میں ناگاں
ये एक्चुअली फिल्म का डायलॉग है। ये शफकत चीमा की मैंने फिल्म का देखा डायलॉग और है। जो सांप ये की आवाज actually निकाली है वो मोइन ने निकाली है पीछे से। ये जो सांप था ना पीछे आपका, ये सिल्वर फॉक्स की तरफ से आ रहा था। Right folks, with that we're going to sign off because we are getting delirious and crazy. See you tomorrow at 12 noon. Take care of yourselves. Good night.